Hello, my dear students. Now, if you are a student who has been watching my videos, welcome back to the channel. And if you're a student who's watching my video for the first time, my name is Prachi Sharma, and I'm glad to see you on my channel. Now, I'm pretty sure that the reason you're watching this video is because you're finding difficulty in analytical chemistry. So, अगर concept में कोई doubt है, so you can go back and watch the previous video. And if you want to try out a few questions, जो कि in-text questions है, so we'll be covering that in today's session. So, whether you are an old student or a new student, I'm always glad to have you on board. So, thank you so much, student, for connecting today. Now, let's get started with today's session. We are working on chapter number 4, Analytical Chemistry in Text Questions. So, as I always say, without wasting any time, let's get started with today's session. Alright students, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. As you know कि जो हमारे in-text questions हैं वो बस 8 questions हैं. So session won't be very long क्योंकि काफ़ी सारे questions direct हैं. But let's get started with it. And if you still face any doubts या आपको नहीं समझ में आ रहा है, so you can definitely reach out to me. और आप reach out कैसे कर सकते हैं? So you can write me an email at psclassesicsc@gmail.com. You can also send me a text on Telegram. Otherwise, you can comment in the comment box below. So, whatever is more feasible for you, you can do that. Now, let's get started with the session. So, सबसे पहला question है, what do you understand by the following? So, सबसे पहला है analysis. Analysis क्या होता है? Analysis is when you're trying to identify information about a given sample. अब वो analysis quantitative भी हो सकती है, qualitative भी हो सकती है. So, it is basically running some chemical tests, some experiments to identify something about a sample. मैंने सारी definitions नीचे लिखी हैं, but for now let's just quickly take a recap ऐसी verbally and then we'll come on the written definitions. B is qualitative analysis. So जैसे मैंने आपको lecture में भी बताया था कि qualitative का मतलब ये है ये identify करना कि जो sample आपका बना है वो कौन से compound से बना है. भाई A भी कंपाउंड है, C D कंपाउंड है, NaCl है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, किस कंपाउंड किस रेडिकल्स को कंबाइन करके आपका कंपाउंड बना है उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस. नाउ रीएजेंट क्या होता है? रीएजेंट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे अगर आप अपने सैंपल में ऐड करें तो वो रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपके रिएक्शंस होंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कंपाउंड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं. सो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कुछ टेस्ट्स रन करते हैं. जो वो टेस्ट रन करने के लिए आप जिस कंपाउंड को या केमिकल को उसमें ऐड करते हैं उसको रीएजेंट कहते हैं. और सबसे पॉपुलर रीएजेंट जो आप इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे दैट वुड बी योर एल्कलीज और मेजॉरिटी इज अमोनियम सो यू हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. दीज 3 एल्कली पे पूरा चैप्टर बेस्ड है. ठीक है. नाउ और प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है. एंड इनसॉल्युबल का मतलब कि वो या तो आपको टॉप पे दिखेगा तैरता हुआ या फिर इट विल सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन. इट्स प्रेसिपिटेट मतलब डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्यूशन में आफ्टर द रिएक्शन हैज हैपेंड. नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशंस. सो सबसे पहले तो अब आप या तो यहाँ पे पॉज करके लिख लीजिए, अदरवाइज जो ये पीडीएफ फाइल है दिस विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अगर वहां नहीं मिलती तो इट वुड बी पोस्टेड इन टेलीग्राम चैनल. अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो रीच आउट करना मुझे. आई मेक श्योर दैट यू गेट इट. नाउ एनालिसिस, द डिटर्मिनेशन ऑफ chemical compounds in a given sample is called analysis. Qualitative analysis, the analysis which involves the identification of the unknown substance in a given sample is called qualitative analysis. Now reagent is a substance that reacts with another substance. ठीक है, जो reaction show करेगा. Precipitation, it is a process of formation of an insoluble solid when solutions are mixed. जब आपने दो solutions को mix किया तो जो एक insoluble solid बना उसको कहते हैं precipitate. The solid thus formed is called precipitate. Let's come back on question number 2. Write the probable color of the following salts. तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट है. जो अब ये सॉल्ट्स वो हैं विच यू आर यूजिंग फॉर द रिएक्शंस.
So the first is iron chloride, which is yellow in color, potassium nitrate, which is colorless, ferrous sulfate मतलब Fe2+ वो है pale green, and then aluminium acetate is colorless. Students, मैंने एक बहुत important chart discuss किया था in the previous session जो हमने theory पढ़ी थी. After that I created a very shorter version of the charts, so make sure that you check that out. अब उसकी हेल्प से ये क्वेश्चंस बहुत फटाफट सॉल्व होते हैं. Now next is name the probable cation present based on the following observation. अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि white PPT insoluble in ammonium hydroxide पर soluble in NaOH. तो आप ऐसा याद करें अगर कि आपके 3 white PPT बनते हैं, ठीक है, टोटल कौन कौन से बनते हैं? कैल्शियम बनता है, जिंक बनता है और लेड. मैं यहाँ लिख देती हूँ कैल्शियम बनता है. मैं डायरेक्ट ना बस एनायन नहीं बना रही, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी समझ में आ जाए. सो यू हैव कैल्शियम, जिंक एंड लेड. जो कैल्शियम है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो आपका आंसर इसमें से हो ही नहीं सकता. जिंक और लेड दोनों व्हाइट पीपीटी शो करते हैं, पर जिंक दोनों में सॉल्युबल होता है, तो इसी वजह से जिंक कैन नॉट बी द आंसर. लेड is soluble in NaOH but it is insoluble in ammonium hydroxide, इसीलिए lead आपका आंसर है. So Pb2+. Now सेकेंड पार्ट पे आते हैं. ब्लू कलर्ड सोल्यूशन. अगर ब्लू कलर्ड सोल्यूशन लिखा दिख जाए और कुछ कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट कॉपर लिख देना, ज्यादा दिमाग मत चलाना. नेक्स्ट इज नेम द मेटल हाइड्रोक्साइड्स विच आर इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल. फिर क्वेश्चन पूरा नहीं था वहां, क्वेश्चन यहाँ पर है इन कास्टिक सोडा एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. ठीक है, तो आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वाले बताने हैं. तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो जिंक और लेड सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और आयरन इनसॉल्युबल सॉल्ट है. ठीक है, कैल्शियम आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल है. अब आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है उसमें जिंक और कॉपर सॉल्युबल है और आयरन, दोनों आयरन आपके इनसॉल्युबल हैं. ठीक है, एक्चुअली इसमें भी आपका दूसरा वाला आयरन भी इनसॉल्युबल ही होता है. ठीक है, आगे बात समझ. आगे बढ़ते हैं. What do you observe when ammonium salt is heated with caustic soda solution? Write the word equation. तो अमोनियम सॉल्ट को आप रिएक्ट कर रहे हैं, कास्टिक सोडा सोल्यूशन क्या होता है? NaOH होता है. कास्टिक पोटैश क्या होता है? KOH होता है. ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे. आंसर 5 यहाँ पर है. क्योंकि उन्होंने वर्ड इक्वेशन बोली है तो आप डायरेक्ट वर्ड इक्वेशन लिखेंगे. अमोनियम, अच्छा देखो, वर्ड इक्वेशन तो लिखोगे ही लिखोगे, इसके अलावा अगर आपको सिंबॉलिक वाली इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, पर अगर सिर्फ वही इक्वेशन आपने आंसर में लिखी तो मार्क्स कटेंगे. ये लिखनी जरूरी है, वो वाला चॉइस है. अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू प्रोवाइडेड हीट, इट वुड गिव यू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस. ठीक है, एक और एग्जांपल, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. Ammonium sulfate plus NaOH gives you sodium sulfate, water, ammonia gas. ठीक है. Question number 6. How will you distinguish between ammonium hydroxide solution from sodium hydroxide solution? So अगर आपने वो वाला चार्ट याद किया है जो मैंने आपको पिछले में एक शॉर्टकट बताया था, तो दोनों में डिफरेंस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम आपका NaOH से तो रिएक्ट करता है पर NH4OH से उसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्टिंग्विश करने का. पर यस, उसके अलावा भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आप लेड से कर सकते हो. तो जिसमें भी आपके डिफरेंस है, थोड़ा सा भी डिफरेंस है, यहाँ सॉल्युबल यहाँ इनसॉल्युबल या कुछ भी छोटा मोटा डिफरेंस, वो आप यूज कर सकते हो इसमें एज एन आंसर. सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस आई एम टेकिंग कैल्शियम. So it can be distinguished by calcium salt. NaOH के साथ मैंने उसकी इक्वेशन लिखी है, that calcium nitrate plus NaOH gives you calcium hydroxide plus sodium nitrate, और ये YPPT बनाता है. और NH4OH के साथ आप डायरेक्ट लिखेंगे on adding ammonium hydroxide to the calcium salt no reaction happens, hence no PPT is formed even when excess NH4OH is added to the solution. ठीक है. Question 7, ये तो डायरेक्ट इसमें उन्होंने आंसर दे रखा है. Why the alkali is added
ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द सॉल्ट सोल्यूशन। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार पीपीटी बहुत जल्दी बन जाता है और अगर एक्सेस हो जाएगा उसमें सोल्यूशन तो वो फटाफट डिसॉल्व भी हो जाएगा, आपको पीपीटी देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इफ alkali is added too quickly it is easy to miss the precipitate that redissolves in access। तो फटाफट पीपीटी बना और फटाफट डिसॉल्व हो गया तो आप नहीं देख पाए, आपसे मिस हो गया, तो ऐसा पॉसिबल है। राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस, सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद आयरन क्लोराइड सोल्यूशन। सो आपके पास है ये रहा reaction of sodium hydroxide, okay, so iron chloride plus NaOH gives you iron hydroxide plus NaCl। फिर आपका दूसरा पूछा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो CuSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू CuOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे आपका बन गया अमोनियम डायमोनियम सल्फेट। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आज का सेशन बहुत ही छोटा और बहुत ही स्वीट था। वी हैड ओनली 8 क्वेश्चंस टू कवर जो हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे। इन द नेक्स्ट सेशन वील मूव अहेड विद द चैप्टर। एक और सेशन होगा आपका, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। देयर इज जस्ट स्मॉल पोर्शन लेफ्ट दैट इज अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स और मेटल के रिएक्शंस विद योर alkalis। So we'll cover that up, and after that there would be one video coming out for the back exercise of the chapter. In the meantime, make sure that you are practicing enough questions, you are revising the content that we are covering up, and of course do subscribe to the channel and share the videos with your friends, and let's all learn together. So this is it for today, my wonderful students. We'll catch up in the next one.